सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। Swami Vivekananda said, every child is a great opportunity for the nation. Transform him and save tomorrow. If we teach today's children as we taught them yesterday, we rob them of tomorrow. Yes, students of today are nation's hopes and aspirations. Last 1.5 years has been very challenging for all of us, especially for students. Overnight, homes were transformed into classrooms. There was absence of human interaction and social connectivity. And gradually we are coming out of this situation. As we are coming out of this situation, our children find it a little challenging. We have invited today Mrs. Dhyutima Sharma, clinical and academic psychologist. She is academic and clinical counselor and psychologist at National Law Institute, University, Bhopal. On behalf of the family of Kendriya Vidyalaya No. 1, Bhopal, I extend you a hearty welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me and giving me this opportunity to spread awareness about mental health. I would like to extend my gratitude to the principal, to you, and to the children. Thank you so much, ma'am. जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के बाद अभी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल स्टार्ट ही हुए हैं। अभी कुछ ही वक्त हुआ है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चे पहले की तरह नॉर्मल फील नहीं कर रहे। साथ ही सीबीएसई बोर्ड की फर्स्ट टर्म एग्जाम भी शुरू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड स्ट्रेस एंड एग्जामिनेशन स्ट्रेस पर। अंडर द सीरीज वी शैल ओवरकम। मैम, as I told you, students were confined inside their houses for a long time. And when they come out, when they have started coming to the school, they feel lost. They don't understand how to behave and they lack proper etiquettes. What can be done, ma'am? Can you please enlighten us regarding this issue? Yes. So, yes, students have come out and into the schools after a long period of time. और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा समय था और इससे पहले घर में ही बंद थे, ज़्यादा किसी से मिल नहीं पा रहे थे। वैक्सीनेशन तो अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण से अभी भी लिमिटेड एक्सेस टू सोशल इंटरेक्शन है। सो एज वी आर ग्रेगरियस एनिमल्स, दिस इज आवर बेसिक नीड टू interact socially. Yes. And feel connected, feel safe and belonged. Exactly. So that is missing. When the basic need, innate behavior has got controlled, basic need is not getting satisfied, you can see the consequences. Yeah. And these are the consequences the whole world is facing, not only children but students and their parents. What could be done in this case? See, the good part is now things are under control, and this gives us an opportunity to come out and interact with each other in a better manner.
earlier we were only talking to each other through phones. Virtual mode. Yes, through virtual mode. Now we are into reality. Yeah. But as you said, they have lacked etiquette. See, this definitely have forgotten. इतने लंबे समय से जो स्कूल में पढ़ते आ रहे थे, धीरे धीरे करके नर्सरी में जो सीखा, फर्स्ट क्लास में जो सीखा, सेकंड क्लास में जो सीखा, और वो लगातार चलते आ रहा था, एकदम से गैप आ गया है. डेफिनेटली ये होगा. इसी संदर्भ में मैं चाहूंगी कि आप बच्चों के पीयर ग्रुप को और पेरेंट्स को कुछ सुझाव दें. जो बिहेवियर है बच्चों का, या जो इस ग्रुप की हम बात करें, ये ग्रुप सभी से सीखता है, आपस में भी सीखता है, टीचर से भी सीखता है, पेरेंट्स से भी सीखता है, सोशल मीडिया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया से भी सीखता है. तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कंट्रीब्यूट करें. लेकिन समाज में सिर्फ टीचर से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी चीज़ें उनको सिखाई जाए. लेकिन ये हमें एक चीज जो अच्छी लगी वो कि इस बार लॉकडाउन में पेरेंट्स ने बच्चों की इस मामले में बड़ी देखभाल की और ऑब्जर्व किया कि बच्चे उनके क्लास में किस तरीके से क्लास अटेंड करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं. हाँ, तो अभी शायद कुछ दिन और उनको ये चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी. राइट. आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनके पास तो बड़ा चैलेंज है, एंड अगर वो पेरेंट एंड टीचर हैं तो और भी बड़ा चैलेंज है. यस, दैट्स ट्रू. एक चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे के बारे में अपडेटेड रहें, उनसे बात करें. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये यूजुअल बिहेवियर नहीं है, ये ऐसा नहीं करता है और कुछ चेंज है बिहेवियर में, जानने की कोशिश करें कि हुआ क्या है लाइफ में उनके. टीचर के साथ में इंटरैक्ट करते रहें, रेगुलर कांटेक्ट में रहें, उनके फ्रेंड्स को जानें, समझें, उनको इनवाइट करें. इनफैक्ट सभी बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स से मिलो, बात करो. इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम उनको अलाउ कर रहे हैं अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए, जो सोशल इंटरेक्शन वाली बात है, बिलोंगिंगनेस की बात है. साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं और हम आपसे रिटर्न में वही चाहते हैं कि आप हमसे खुलकर शेयर कीजिए. कोई परेशानी है तो, कुछ गड़बड़ कर दी है तो सब शेयर करो. एक फ्रीडम मिलनी चाहिए कि There should be freedom. And there should not be any inhibition between the parents and the children. तो ताकि कुछ अगर गलत हुआ है तो वो आके बताने की हिम्मत कर सके. राइट. एंड आपने पीयर ग्रुप की बात की. यस, etiquette related, if this question is, we can remind each other as peers. You all can remind each other. See, this is not, this shouldn't be done, or maybe you can do some other thing and you won't get these consequences. So maybe politely, अच्छे से बात करके, without teasing a person or without bullying a person, you can help this person. तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बन गई है कि वो ऑब्जर्व करें, बच्चों को स्पेस दें और इतनी लिबर्टी दें, इतना फेथ रखें उनमें कि वो आके अपनी समस्या पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें. दूसरी चीज जो ऑब्जर्व करी है, घर में रह के बिस्तर पे लेट के जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, उन्होंने एक चीज तो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि चिल्ड्रन नाउ लैक द स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क, नॉट रेडी टू वर्क हार्ड. क्या किया जाए मैम? आई एग्री. ऑनलाइन क्लासेस जो बिस्तर में बैठकर अटेंड की गई है और उठते से ही बस आँख मिल के पहली क्लास अटेंड की गई है, उसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं ही. लेकिन जब बच्चे स्कूल आना शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो एक रूटीन में फॉलो करना शुरू कर रहे हैं और यही चीज़ एनकरेज भी की जानी चाहिए. बच्चों से मैं एक चीज़ कहूँगी कि बच्चों इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट्स अपने आप से और दूसरों से मत कीजिएगा कि पहले ही अच्छा था, अब क्यों ऐसा कर दिया, अरे मुझे तो ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करनी है, मैं तो नहीं जाऊँगा. अगर आप
नॉर्मली क्लासेस जो हैं, फिजिकल क्लासेस आप अटेंड नहीं करोगे, आप रूटीन में नहीं बन पाओगे, आप कितना भी चाहो। मुश्किल तो है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर में रहकर भी रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो किया और उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बनी रही इसी कारण से। सो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए कि आपको एक डिसिप्लिन में फॉलो करना पड़ रहा है, रूटीन फॉलो करना पड़ रहा है। इसके अलावा आप जो थक जाते हैं जल्दी या स्क्रीन देखने की वजह से जो आपकी आंखों में असर पड़ रहा है, उसकी वजह से फिजिकल हेल्थ डिटेरियोरेट होती ही जा रही है। सो अपने खाने का भी ख्याल रखें। तो ये दो चीज़ें मैं आपको इस I would like to give these two tips in this answer is that ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी, अपने कंफर्ट जोन में रह के, अपने बिस्तर पे लेट के, अब वही आदत पड़ गई है। नाउ दे आर लैकिंग द स्पिरिट ऑफ डूइंग एनी हार्ड वर्क। तो अब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट्स हैं तो। मैम प्लीज गिव मी सम सजेशन रिगार्डिंग दिस इशू। जी मैम, I really agree with this point that a lot of students have lost the energy, the routine that they were following during their school days. Since they are now attending online classes, it has become difficult for them to follow a routine. Parents कितना भी बोले बेटा जल्दी उठ जाओ, बेटा ये कर लो वो कर लो, लेकिन क्योंकि सुविधा है, आसानी है, अपॉर्चुनिटी है इस तरह की, सो हमारा नेचर ही ऐसा होता है कि हम इजी तरीके ढूंढते हैं चीज़ों को करने के लिए। ये एक तरीके से फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। फ़ायदा तो कम होता है अगर हम रूटीन फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं रहते, लेकिन नुकसान ज़्यादा होते हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, इवन स्पिरिचुअल हेल्थ पे असर पड़ता है। मतलब ओवरऑल हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, आपकी वेलनेस में डिक्लाइन आ रहा है। तो जो आप लेथार्जिक हो रहे हैं, थक रहे हैं या आलस कर रहे हैं, वो अभी आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो मैम आपने बात की कि स्पिरिट लॉस्ट हो गया है, मोटिवेशन नहीं है बेसिकली। अगर बच्चे एक रूटीन फॉलो करेंगे जो कि उनका ही खुद का बनाया हुआ हो, मे बी आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको लोग आकर बताएं, आपके पेरेंट्स बताएं कि यही फॉलो करना ही है आपको शायद नहीं पसंद आ रहा हो, तो आप अपना खुद का एक रूटीन बनाइए। आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। जब आपको मीनिंग मिलेगा तब आप प्रॉपरली रूटीन फॉलो कर पाएंगे और आपको मजा आएगा वो करने में। उस रूटीन में सिर्फ पढ़ाई मत रखिए, उस रूटीन में आप अपने मी टाइम को भी टाइम दीजिए। आप एंजॉय करें, रिलैक्स करें, खेलें कूदें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाए पिए। अच्छा खाए पिए मतलब नॉट पिज्जा बर्गर और एनी फास्ट फूड, बट हैव हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट। दिस इज नेसेसरी। सो टेक अवे पॉइंट्स वुड बी have a healthy routine. That means that includes sleep and wake time as well. Fixed sleep and wake time. 7 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है बच्चों के लिए। फिजिकल एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है उससे। और इसके अलावा अच्छा खाएं, लोगों से बातें करें, इंटरेक्ट करना ज़रूरी है। अपने आप में ना रहें। अगर आपको डर लग रहा है, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो भी कहीं ना कहीं से आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए कि किसी न किसी से बात तो करें। Yeah, that is really very important to like share your views or share your emotions, because now we are finding as they come out, as they are coming to the school, there are cases of emotional outburst. Children are not able to control their emotions, and somehow in the negative way or in the positive way there has been an outburst. So
I would like your some suggestion or a solution to this problem. सो इमोशनल आउटबर्स्ट क्यों होता है, उसका एक कारण तो ये है कि शायद उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है या उन्हें कोई समझने वाला नहीं है, ये फीलिंग उनको आती है। Yeah, exactly. I can understand that. तो अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो इंसान जोर से चिल्लाए, कोई जोर की आवाज में नहीं सुन पा रहे तो वो और ज्यादा आवाज करेगा, कहीं ना कहीं से वो ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। That's true. That's true. So, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटेंशन सीकर है या वो बहुत बदतमीजी कर रहा है। अगर वो आउटबर्स्ट एंगर में आ रहा है तो कई बार लोगों को लगता है वो बदतमीजी कर रहा है। मतलब आपके बच्चे को क्या गुस्सा करना अलाउड नहीं है? क्या बच्चों को रोना अलाउड नहीं है? क्या वो हमेशा सिर्फ खुश रहे? ये शायद पेरेंट्स की कमी है कि उन्हें सिर्फ अपने बच्चे को खुश ही देखना है। आपका बच्चा एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, और बधाई हो कि वो इंसान है। Yeah, it's true. और अगर आप इंसान हैं तो आप एक वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को फील कर सकते हैं। यही हमें नॉन लिविंग बीइंग्स डिफरेंट बनाता है कि हम फील कर सकते हैं और फिर हम डिफरेंट इमोशन को कर सकते हैं। आप यू आर अलाउड टू फील एंगर, फियर, डिस्गस्ट, एंजाइटी, सरप्राइज, हैप्पीनेस, जॉय, एवरीथिंग। नाउ द प्रॉब्लम इज जब इनमें से कोई भी चीज एक्सेस हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्या एक्सेस हो रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा हो रहा है, लिमिट से ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, लिमिट से ज्यादा दुख, रोना, एनी काइंड ऑफ पेन एंड हर्ट कैन रिजल्ट इन ऑल दिस। सो इसको आपको अपने आप को हेल्प करना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, और इनफैक्ट पेरेंट्स को उनको एक ऐसा स्पेस देना चाहिए जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि हाँ, अगर मैं अपने वल्नरेबल स्टेज में रहकर भी बात करता हूँ, अपने दिल खोल कर अपनी बात करती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मुझे जज नहीं करेंगे, वो मुझे बीच में रोक नहीं देंगे, मेरी पूरी बात सुनेंगे, और मैं अपनी बात को रखने की सक्षम भी हूँ, और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, इसे रोका नहीं जा रहा। अपने फ्रेंड्स से भी बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ऐसे फ्रेंड बनिए जिसके पास आकर सब अपनी बातों को बताएं। इसमें एक सजेशन मैं देना चाहूँगी, टिप देना चाहूँगी, अगर आपसे कोई अपनी इमोशनल आउटबर्स्ट में कोई बात कर रहा है, आपको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपसे भी शिकायत कर रहा है, पूरी गलती आपकी नहीं है, शायद वो तकलीफ में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। जब वो तकलीफ में है, आपको उसकी तकलीफ को बोरो करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला गुस्से में तो आपको गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं। सामने वाला रो रहा है, अगर आपको दुख हो रहा है, अच्छी बात है, आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा उसके साथ मत बह जाइए कि आप दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। एक और इसके साथ में कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है, आपको कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको उसका सोल्यूशन देना ही है। हाँ, कई बार सिर्फ बात सुनने से भी सामने वाला हल्का महसूस करने लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक एम्पैथेटिक एक्टिव लिसनिंग बहुत बड़ी हीलिंग प्रोसेस का काम करती है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है सोल्यूशन प्रोवाइड करना, और अगर आपने कर दिया है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो आपने सोल्यूशन दिया है वही वो फॉलो करे। इस बात से आप नाराज मत होइएगा कि मैं हर बार कोई सोल्यूशन देता हूँ, हर बार तुम फॉलो नहीं करते। शायद वो नहीं कर पा रहा है, उसे एक्सटर्नल में भी और ज्यादा हेल्प की जरूरत है, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, या वो इतनी तकलीफ में है कि जो आप बता रहे हैं वो कॉग्निजेंस में नहीं बैठ रहा है। अलग शब्दों की जरूरत पड़ सकती है, किसी काउंसलर की जरूरत पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, पर्सनली ना लें, और जिम्मेदारी पूरी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की ना लें। अगर आप ये दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप ऑटोमेटिकली गुड लिसनर बनेंगे। जब आप एक गुड एक्टिव एंड एम्पैथेटिक लिसनर बनेंगे, हीलिंग होगी। जब हीलिंग होगी, आउटबर्स्ट नहीं होंगे, क्योंकि
आपके इमोशंस को वेंट आउट करने का चैनल मिल ही जाएगा। बहुत ही अच्छे सुझाव आपने दिए कि जरूरी नहीं है कि किसी भी इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो गलत ही है। इट इज समटाइम्स गुड, इट हेल्प्स द पर्सन इफ ही हैज रिवील्ड व्हाट ही फील्स। और बहुत अच्छा सजेशन है पीयर ग्रुप के लिए भी कि अगर कोई बच्चा आपके पास आता है, आपका कोई फ्रेंड आता है, कभी नाराज हो जाता है, तो आप मत नाराज होइए, आप उसकी बात को पूरा सुनिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो भी हो सकता है उसकी प्रॉब्लम किसी हद तक सॉल्व हो जाए। सो इमोशनल आउटबर्स्ट इज नॉट बैड। ओके, पेरेंट्स भी ये माने अगर बच्चा नाराज हो रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम उसको लेबल ना कर दें कि अब तो ये हाथ से निकल गया, अब तो ये बिगड़ गया। ओके, वी हैव टू बी अ पेशेंट लिसनर। Thank you, ma'am. Thanks for such nice suggestions. Ma'am, unconsciously, our children are under the stress of COVID-19. They have not totally come out of it. Can you suggest something how they can overcome this situation? Yes. Unconsciously और consciously दोनों तरीके से स्ट्रेस तो है कोविड-19 का। और इनफैक्ट अभी पैंडेमिक खत्म हुआ भी नहीं है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि नया वेरिएंट आ गया है विच इज़ मच मोर पावरफुल। सो एंजाइटी तो बनी हुई है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि हर स्ट्रेस नेगेटिव नहीं होता, प्रॉब्लमैटिक नहीं होता। आपको स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत हमेशा नहीं है। कुछ लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है हमको अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, तो हम अपने आप को सेव कैसे करेंगे? सोचिए जंगल में अगर हम जाएं, हम हमेशा पॉजिटिव रहें, तो शेर कब खा के चला भी जाएगा हमें पता नहीं चलेगा और हम सोचते रह जाएंगे मुझे तो कुछ नहीं होगा। सो स्ट्रेस जो है वो हमको प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करता है। तो आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि प्रॉब्लम क्या है, मैं कैसे इफेक्ट हो रहा हूँ इस प्रॉब्लम से और इसका सोल्यूशन क्या है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। पॉजिटिव अप्रोच रखने का मतलब 100% ऑप्टिमिज्म नहीं है, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है, कुछ तो इसका तरीका होगा, कोई अल्टरनेटिव होगा। होपफुल रहिए। बेसिकली हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस मत फील कीजिए, क्योंकि ये है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करने देंगे। अपना माइंडसेट ऐसा रखिए जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ ज्यादा आपका ध्यान हो, ना कि कंप्लेंट्स की तरफ। अगर हम पास्ट में जाके प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और ऐसा कर देना चाहिए था, वैसा कर देना चाहिए था, उससे कुछ नहीं होगा। वी आर ओनली वरीइंग, ओनली रूमिनेटिंग। व्हाट कैन बी डन, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स डू आई वांट, दिस इज नेसेसरी। Some children, they are quite normal, और नॉर्मल में उनका मास्क हट गया है, सैनिटाइजर यूज नहीं हो रहा है, हाथ नहीं धुल रहा है, और कुछ है इतना डर रहे हैं कि वो नॉर्मल ही नहीं हो पा रहे हैं। मास्क लगा के you can use sanitizer, you can wash your hands, and that way after doing all this you are in a normal situation now। लेकिन ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक बिल्कुल केयरलेस और एक बहुत डरा हुआ। ये इसका सॉल्यूशन चाहिए। दोनों ही बच्चों को बताने की जरूरत है कि साइंस कैसे काम है। आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मतलब फैक्ट्स होने के बावजूद आपके इमोशंस आपको ओवरपावर कर रहे हैं, इमोशन ऑफ फियर, एंजाइटी, और इसके चलते आप लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप बार बार हाथ धो रहे हैं, बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं। इसका असर आपके हाथों पे हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए कि कितना आप what activity are you doing and why are you doing, how much is this necessary. Same applies to the kids who do not follow general norms of social distancing and sanitizing. 2021-22 has been very challenging for students as they were attending online classes and going through various traumatic situations also. And now their CBSE first term board examination has started,
And in other classes also, it is first term. Our children are nervous, they are anxious, they have many questions in their minds. I want Vipansha to come up with her question. What is going on in her mind? Good morning, ma'am. Ma'am, on the examination day, sometimes I get panic attack, and because of the nervousness and anxiety, I'm not able to arrange the questions that properly, the way that I should. Even I sometimes forget, even if I have studied that concept. So, how can I deal with this problem? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, इतना फियर बढ़ जाता है कि वो एंजाइटी के रूप में दिखाई देने लगता है। इसके फिजिकल सिम्टम्स एंड मेंटल सिम्टम्स हमको समझ में आते हैं, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग बहुत तेज हो जाती है, Yes, ma'am, exactly. बॉडी एक होता है, और स्वेटिंग आती है, कभी कभी हाथ पैर ठंडे हैं लेकिन स्वेट हो रहा है ना, चोकिंग फीलिंग होती है, कई बार पैल्पिटेशंस होते हैं, बीपी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। सो ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी के हैं। इसके अलावा माइंड में क्या चल रहा होता है, इरैशनल थॉट्स, मुझसे नहीं हो कुछ नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दूंगी। इमेजिनिंग द वर्स्ट केस सिनेरियोज बेसिकली। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, हम रैशनली नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने फियर ड्रिवन थॉट्स के साथ जा रहे हैं। हम एंजाइटी में यूजुअली फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। हमारी माइंड को पता नहीं होता कि जो हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली हो रहा है या हम इमेजिन कर रहे हैं। अगर आपने वो वर्चुअल वाले कैमरास जो आते हैं जहाँ पे आप 3D एंड अदर हाई डेफिनेशन मूवीज देखेंगे, तो आपका माइंड बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि सच में वो हो रहा है। आप पहाड़ की चोटी पर, हाँ आप पहाड़ पर हैं तो बस आप गिरने वाले, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट कर रही है। एग्जैक्टली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द माइंड टू not being able to differentiate between the reality and the imagination of the virtual world. So ऐसे में क्या हो रहा है, माइंड को नहीं पता कि सच में जो मैं सोच रहा हूँ वो कितना पॉसिबल है, क्या इज दिस एक्चुअल ट्रूथ और आई एम जस्ट वरीइंग। ओके, ऐसे में क्या हो रहा है, आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे कि उस सिचुएशन में अगर होते तो करता। जब सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन है तब बॉडी रिएक्ट कर रही है, माइंड रिएक्ट कर रहा है। अब आपको क्या जरूरत है, आपको काम डाउन होने की जरूरत है। अभी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया है, जहाँ पे वो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में है। या तो वो फाइट करेगा या एक और होता है फ्रीज कर जाना। जो आपको पैनिक अटैक आ रहा है, बेसिकली फ्रीज कर रहे हो, आप फाइट नहीं कर पा रहे, अवॉइड भी नहीं कर पा रहे, आप वहाँ पे फ्रीज हो गए। ठीक है, ये तीन हमारे रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस है, या स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। हम इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, 3 Fs, फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। तो फ्रीज तो कभी मत होना, दैट्स द वर्स्ट थिंग बेसिकली, दैट इज नॉट हेल्पफुल इनफ। ओके, सो क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले तो जो एंग्शियसनेस आ गई है बॉडी एंड माइंड में, उसको रिलैक्स मोड में लेके जाना है। जो एक्टिविटी हो गई है उसको थोड़ा सा काम डाउन करना है। सबसे पहले आपकी बॉडी से इसको फ्लश आउट करना है। तो क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग एक आपकी ब्रीदिंग एक ऐसा टूल है जो दोनों जगह हो सकता है। आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है, रन करना है। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं एथलीट जो क्या करते हैं, जंप करते हैं, सांस लेते हैं, वो एक्टिवेट करें। अब वो काम डाउन होना है, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करो। How will you do it? इसका एक फॉर्मूला है 4, 2, 6। क्या फॉर्मूला है, 4, 2, 6. 4 seconds के लिए inhale from the nose, 2 seconds hold and 3 seconds exhale from the mouth. Okay? The mouth.
Okay. Yes. Inhale from nose, exhale from mouth. 4 seconds. 2 seconds hold. And 6 seconds. Exhale. Do it. ये 5 मिनट्स के लिए आप करोगे ना, constant relief. All of you do it, children. You'll feel better. It helps in relaxing your body. Could you feel that? Yes, ma'am. Such instant relief, isn't it? तो ये तो तब काम आता है जब आप एक्चुअली पैनिक मोड में हो और आप ये अप्लाई कर रहे हो, फटाफट रिलीफ मिलेगा. इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं, किसी का इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि वो ये भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उस समय पे आप क्या करेंगे, अपने आप को ग्राउंड कर, प्रेजेंट में आओ. अभी माइंड कहाँ है? फ्यूचर. यस. तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट में आना है. उसको बताना है आप किधर हैं अभी. सो देयर इज अ फॉर्मूला अगेन, 5 4 3 2 1. इज इट 5 4 3 2 1? सो आपको अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना है. बेसिकली 5 सेंसेस के थ्रू आपको पता करना है कि मैं प्रेजेंट में कहाँ हूँ. 5 थिंग्स दैट यू कैन सी, आपको उनको नाम देना है. लेट्स डू दिस. 5 things you can see. What you should tell. 5 things that you Take this. see here. Glass, cameras, light. माइक में बोलो. Glass, camera, light, and table. ये बिना देखे बोल रहे हो ना? देख के बोलो. See them. ये तो तुमको पहले से पता था, isn't it? Okay, this is my tablet, black in color. Glass भरा हुआ, थोड़ा सा खाली. You know, go get into the Keep detail, your mind there. right? And मतलब मैं आपको यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रही कि आपको कितना मालूम है. मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको अपनी आईज के थ्रू प्रेजेंट में देखना है. ठीक है. सेकंड, 5 4 3 2 1 4. नेक्स्ट सेंस कौन सा लोगे? यस. ओके. यस. ऑलराइट. इट्स योर चॉइस. 4 आवाजें जो आपको सुनाई दे रही हैं, ध्यान से सुनो. नाम दो, लेबल दे. एसी की आवाज आ रही है, खुद की ब्रेथ की आवाज आ रही है. नाइस. मेरी आवाज नहीं आ रही. ओके, इतनी आवाज है. अगर आपको 4 आवाजें ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ईयर जो है एक्टिवेट होते हैं, राइट. इसी तरीके से आपको सारे सेंसेस जो अपने हैं, विजन, हियरिंग, ऑल्फैक्टरी, टेस्ट एंड टच. टेस्ट के लिए क्या करो? Anything that you can taste, just taste, have the taste and feel the taste. कैसा है? Okay? अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप grounded feel कर पाओगे. You will be back in the present and then you can apply deep breathing technique. Vipansha, can you repeat these 5 things? Ma'am, first of all, we will take a deep breath. We will sense what is around us. We will not think about the future. We will not imagine things. We will be in present. We will ground ourselves, and we can feel the senses, different senses like hearing the voices, seeing the things around us, and tasting. Something. Yes. Thank you so much. Very Even touching also. Yes, Touching that's is also a sensation. So you can how rough or how hard, how soft. Yeah. Thank you so much. Pleasure. These are the 2 quick tips that you can apply when you are feeling the anxiety and panic attack. Otherwise, I would suggest you to do some precautionary measures. If you will only depend on the quick fixes, आपका long term में help नहीं होगा. एवरी टाइम जब पैनिक अटैक आ रही है, एंजाइटी हो रही है, तभी आप ये अप्लाई करोगे. आप पहले भी कर सकते हो. एग्जाम में जाने से पहले ही अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में ही लेके जाओ. सी, एंजाइटी इज नॉट ओनली अबाउट माइंड, इट इज आल्सो फिजिकल. तो पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लो. आप मेडिटेशन रोज करो. मैंने पहले भी बताया था.
मेडिटेशन करने से आपके माइंड को रोज प्रैक्टिस होगी कि कैसे उलझना नहीं है अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स में, कैसे आप बाहर आ सकते हो। इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। आपको ये YouTube पे बहुत सारे इसके गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे एप्स हैं जैसे हेड स्पेस हो गया, काम, बहुत सारे मिल जाएंगे। एवरी डे ओनली फॉर 2 or 3 minutes if you do, your mind will learn how to come out, how to overcome. Vinisha has some worries. What is your worry, Vinisha? Vinisha is also worried. What is your worry, Vinisha? Ma'am, my worry is if sometimes by chance if I fail to achieve the expected results, how will I face my family and parents? Oh my God. क्या बात है, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप अपने जो गोल्स हैं उनको अपने मम्मी पापा के लिए, टीचर्स के लिए अचीव करने की कोशिश कर रहे हो तो डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो शायद अपने आप को फेस करना मुश्किल होगा, लेकिन उनको कर सकते। ठीक है, बेसिकली मैं इससे क्या कहना चाह रही हूँ, remind yourself what you are doing and why you are doing things. Why do you want to achieve that goal? How important it is for you? And what will happen, what worse will happen if you are not able to achieve that? Basically, you are also preparing yourself for unexpected results, for failing, right? And यहाँ से एक बात लेकर जरूर जाना कि तुम कभी जीवन में हमेशा नहीं जीत सकते, हमेशा यू कैन नॉट पास, फेलियर्स देखने को मिलेंगे। कभी कभी तो कुछ फेलियर्स हमारे खुद के क्रिएटेड होते हैं। इफ नॉट 80%, then I'm a failure. Who's declaring this? Who's declaring this that I am a failure if I'm not scoring 80 or 90? Even 79, 75, 60 is good enough. Maybe I can do better next time. What did I do wrong that I can improve in the future? ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है और ये रियलिस्टिक है। जब हम वरी करते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ओनली रूमिनेटिंग एंड ओनली टेकिंग टेंशन वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे और अपने फेलियर से लर्न करने की कोशिश कीजिए, ये एटीट्यूड बनाइए कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे, सॉरी, आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप कॉन्शियस नहीं है इस बारे में तो शायद आने वाले सालों में हो जाएंगे, या शायद मेरी उम्र के होंगे तब हो जाएंगे, तो आपको ये शायद याद आएगा, यार उस समय ये वाला एग्जाम देती थी तो मुझे ये वाला सर्टिफिकेट मिल जाता, तो ये मेरे काम आ जाता। ये आपके काम आने वाले हैं, आपके करियर में, इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप्स में। आप अपने लिए करते हैं। My dear Samia is, you know, she really wants to come out of one situation. She is trying hard. But let's see how will you help her. Samia, please come up with your question. मैम, मैं जानती हूँ कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होता है, पढ़ाई नहीं कर पाते, बट हाउ आई रेजिस्ट इट। मैम कैसे बचें, कैसे खुद को कंट्रोल करें? ये तो शायद आप भी जानते होंगे कैसे बचना चाहिए। अगर आप ये जानते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपके लिए नुकसानदेह है, सो आप ये भी जानते होंगे कि बचना कैसे है। मोबाइल को ऑफ कर दें, डिजिटल वेलबींग का यूज़ करें, पेरेंटल लॉक लगाएं, ये एक्सटर्नल कंट्रोल्स हैं। लेकिन मैम अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उस टाइम पे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे नहीं कंट्रोल कर पाते। जैसे कि क्लासेस अटेंड करते हैं क्लासेस, तो उस टाइम किसी का मैसेज आ जाए तो ऐसा लगता है ना, माइंड उस साइड जाता है, क्लास छोड़कर वो देख लें पहले क्या मैसेज आया है, उसका रिप्लाई करते हैं। ऐसा होता है। ऐसा होता है। एक्चुअली मोबाइल फोन्स में सब कुछ इसीलिए आ गया है जिससे कि आप उसमें ही लगे रहें। उनको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि आप एडिक्टेड रहें। सोशल मीडिया हो,
कोई OTT प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन गेम्स हो, वो चाहते हैं कि आप अपने इम्पोर्टेंट कामों को छोड़ के ये करें, क्योंकि उससे उनको फायदा होगा मॉनेटरी। आप पैसा शायद नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पैसा मिल रहा है आपके यूजर से। इनफैक्ट जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, आप वहाँ पे एड्स देखते हैं, फिर आपको लगता है वाह ये वाली तो बहुत अच्छी ड्रेस है, तो मुझे चाहिए, फिर आप दूसरे वाले ऐप पे जाते हैं, वहाँ पे परचेज करते हैं। मैम कभी कभी तो सोशल मीडिया पर भी आजकल शॉपिंग चल रही है, वहाँ पे भी कर लेते हैं। राइट, तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर हैं, डायरेक्ट कस्टमर भी हैं। So, ये कॉन्शियसली याद रखने की जरूरत है कि इससे मेरा फायदा नहीं हो रहा। और किसी का मैसेज आ गया, एक बात समझिए, अगर आपके पास अभी फोन है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, किसी का मैसेज आ जाएगा, क्या आप देखेंगे? क्यों नहीं? आपकी तो आदत है। या मेरे पास मैसेज आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मैं नहीं देख रही। पता क्यों? क्योंकि मैसेज है। मैसेज का पर्पस ये है कि जब इंसान फ्री होगा तो देख लेगा और रिप्लाई कर देगा। ये सामने वाले जिसने मैसेज भेजा है उसको भी मानना चाहिए, जानना चाहिए। अगर वो बोलता है अरे मैंने मैसेज किया तुमने रिप्लाई नहीं किया, उसको बोलो इंपॉर्टेंट है, कॉल कर देते। और अगर आपके लिए वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो आप लोग, अदरवाइज उसको भी आप पुट ऑफ करके मैसेज कर सकते हो, आई टॉक टू यू लेटर। बेसिकली आपको अपनी आदत बनानी है कि कैसे मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट? अगेन दिस क्वेश्चन, व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाई एम आई डूइंग सो। आपकी क्लास चल रही है, आपने फोन उठाया और तब आप अपने आप से सवाल पूछे मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन मैम क्लास तो फोन में ही चल रही होती है। उसको स्लाइड कर देना, ये एक्टिवली करना पड़ेगा, ये आदत बनानी पड़ेगी। किसने बोला है कि मैसेज आया तो आपको देखना ही जरूरी है? नहीं मैम, वो होता है ऐसा। होता है ना, इसके लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। अगेन दिस इज अ वेरी tangible example that your mind is getting distracted. It will get distracted during your exams as well because उसकी प्रैक्टिस ऐसी है। आपको उसको प्रैक्टिस कराना है फोकस करने की। कभी नोटिस किया आपका अटेंशन स्पैन कितना है? कितनी देर के लिए किसी उसमें फोकस कर सकते हो आप पर्सनली, नॉट द स्टैटिस्टिक्स। हाँ, मोबाइल छोड़ के बाकी किसी चीज में ज्यादा टाइम तक नहीं करती। That is not actually, ये एडिक्शन का साइन है बच्चे। Keep a check। डिजिटल डिटॉक्स करना। Yes, डिटॉक्स ही करना पड़ेगा आपको। थैंक यू मैम। Now it's time for Advait, who plans a lot for himself, but then somewhere half the way he changes his plans. So Advait, what is your question? Yes, ma'am. Ma'am, I have two plans. Plan A, focusing on academic syllabus. Plan B, focusing on competitive exams like NTSC. But ma'am, my problem is, ma'am, when I choose the option B, the plan B, I get very lenient towards the plan A. Ma'am, how do I solve this? पहले तो दोनों ही एकेडमिक्स हैं, आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो दोनों जगह पे, अच्छी बात है। इसे सॉल्व कैसे करें? बड़ा कन्फ्लिक्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने प्लान ए रखा है और प्लान बी सेफर ऑप्शन है, क्या ऐसा है? Yes, ma'am. It's like secondary option, like backup plan. बैकअप प्लान। Ma'am, but ये प्लान बी जो होते हैं ना, बड़े बैकअप प्लान ही होते हैं। अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या लीनियंट हो रहे हैं, आप फुल फोकस वहां पे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये कि आप प्लान ए भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप शायद किसी चीज से डरे हुए हैं, आप मोटिवेटेड ही अपने डर से हो रहे हैं। अगर आप पैशनेट फील करते हैं किसी के बारे में, आप अपने इंटरेस्ट के साथ कोई काम करना चाहते हैं, आपको एंड रिजल्ट दिखाई दे रहा है, आपको उस प्रोसेस में मजा आ रहा है, तब आपको इजीली, मतलब लेस एफर्ट्स पुट के भी आप कर सकते हैं। या अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सफर कर रहे हैं, ये पेनफुल है, मजा आएगा करने में। लेकिन मजा नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, तो लगेगा कि यार दूसरा भी कर लेते हैं।
फिर उसमें भी फिर आप ढूंढोगे कि गड़बड़ होगी, तो फिर उसका प्लान सी क्या होगा, प्लान डी क्या होगा। रखो जितने प्लान रखने रखो, लेकिन अगर आप एक प्लान के ऊपर काम कर रहे हो तो फोकस होकर करो। फोकस नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आया? थॉट से। एक थॉट है तो चल के आया फ्यूचर से, नहीं हुआ तो क्या होगा। आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। थॉट्स आर नॉट थ्रेट्स, they are not commands. They may or may not be wise, they may or may not be important. See thoughts as thoughts. If they are not absolutely true, you do not have to really believe them. If they are not threats, you do not have to get threatened. If they are not wise, you do not have to take their advice. If they are not commands, you do not have to follow. Simple, clear. See them as thoughts. एंड ये तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड अलर्ट है। अगर वो उलझ गया है तो कहानी खत्म होने के बाद वापस आएगा, सोचने लगे था वैसे मैं क्या कर रहा था, है ना। थैंक योर माइंड दैट इट हैज कम बैक। दिस इज वन टेक्निक। सेकंड, आई एम हैविंग अ थॉट दैट, ये लगाना दैट नहीं हुआ तो राइट। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, करके देखते हैं। चलिए क्या आप कर सकते हैं क्या कुछ? एक बहुत ही नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लेकर आइए अपने बारे में। आई एम डैश। ओके, एवरीबडी इज डूइंग दिस। आई एम डैश। बिलीव इट कंप्लीटली। क्लोज योर आईज एंड बिलीव दिस कंप्लीटली। आई एम डैश। Negative. For example, I am a fail. I am stupid. I am ugly, I'm fat, etc. Believe this completely and notice how it affects you. How is it affecting you? Okay. Now wait. Done? Okay. Second phase of it, the exercise. Again, bring this thought in your mind. Same thought. I am having a thought that. उसके आगे एक prefix लगाइए. I am having a thought that I am dash. ये जो same चीज़ use की थी. For example, I am a failure मैंने use किया. I am having a thought that I am a failure. Believe this completely. Close your eyes and believe this completely. I am having a thought that I am dash. Notice how it affects you. Done? Alright, you can open your eyes. One of you, maybe you, yes. Tell me. Yes, ma'am. The words consequences, ma'am. I can like in my mind, ma'am. I can see that it's gonna be like bad and then worse, like. In the first phase, your mind believed it, and उसके बाद वो examples भी देने लग गया. Yes, ma'am. वो evidences भी देने लग गया. हाँ, this is true, isn't it? Yes, ma'am. जब हमने second phase किया, I am having a thought that I am dash. जब ये किया, तब क्या mind? Ma'am, it turned into like a probability, like it can go. Like, Could be true, could not be true. इसमें हमने इस thought को twist नहीं किया कि positive सोच, affirmations डाल या कितना सही है कितना नहीं है, हमने वो सब नहीं किया. हमने thought को thought की तरह ही देखा. जब हमने ऐसा किया, हमारे mind को automatically distance मिल गया. Now you know this is a thought. आपका focus better बनेगा कि नहीं इससे? Good, well done. Thank you. Very nice. Very nice activity, and you must share this activity with your friends, right? Now we have Pratyush. Something is going on in your mind, Pratyush. You want to ask back something? मैम whenever I prepare for my papers, मैम मैं जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसका आंसर दो, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा. तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें? It's the every time situation. हर समय ऐसा होता है. यस मैम. मतलब आपको अपनी नॉलेज पे भरोसा नहीं है?
ये मैम जब भी प्रैक्टिस करता तो लगता है कि इसका आंसर ये होगा या चेंज हो जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है उस आंसर पे हमेशा चेंज। इसके लिए तो सिंपल एडवाइस यही है कि आप अपने एग्जाम प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना उसका प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी चीज़ ये, खुद पर भरोसा रखिए, कई बार आप सही हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद ये पीयर ग्रुप इंटरेक्शन में भी ऐसा होता होगा कि कोई आपको मालूम है, आपने आज ही न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा था, लेकिन कोई और है जो आके बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अरे ये चीज़ है, फिर आप हाँ आप उसको ज़्यादा बिलीव करते हो, खुद को नहीं, जबकि आपने वो पढ़ा है, आप कंफर्म करने जाते हो। कंफर्म करना ठीक है, लेकिन दूसरे को हमेशा सही मानना, खुद को हमेशा गलत मानना, ये रियलिटी नहीं है। आप रैशनली नहीं सोच रहे, आपका भरोसा खुद पर नहीं है, और इसके लिए आपको अपनी नॉलेज पर काम करना चाहिए और अपने इमोशंस पर नहीं। कैसे करेगा? जब आप कोई आंसर दे रहे हैं या आपने किसी से बात किया और आपको वो गलत प्रूव कर रहा है, ask him to provide evidence or you yourself find evidences. You are questioning a thought. For example, अगर मैं एक internal thought के बारे में बात करूँगी, मुझे कुछ नहीं आता thought, okay? मुझे कुछ नहीं आता। Now माइंड कैसे काम करेगा? हाँ इस दिन भी मैंने नहीं कुछ बोल पाया था, हाँ मम्मी भी ऐसा ही बोलती है वगैरह वगैरह, ओके? ऑल द एविडेंसेस। आपका माइंड कंफर्मेशन बायस में जा रहा है, कंफर्म कर रहा है इस थॉट को कि ये सही है। आपको क्या करना है? सीधा कि नहीं, ये जो थॉट है मुझे कुछ नहीं आता, इसके अगेंस्ट क्या क्या एविडेंसेस हैं, राइट? ये आपको प्रोवाइड करेगा कि ये कितना सही है जो आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ आता है या नहीं आता। जब आपको रियलिटी के साथ आप आओगे ना, तब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को बाइनोक्यूलर विजन में देख रहे हो, वो भी उल्टा करके, जो आपका रियल साइज है उसे छोटा करके देख रहे हो, ठीक है? ये मेंटल फिल्टर है, इसको हटाओ, रियलिटी में। फिल्टर्स हमेशा सुंदर नहीं होते। Yes, Ashi, you want to ask something? मैम बहुत बार ऐसा होता है 11th ग्रेड में, 11th और 12th ग्रेड में, कि कोचिंग वाले बोलते हैं कि जेईई और एग्ज़ाम्स में फोकस करो, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें फोकस करो, लेकिन स्कूल में ये बताया जाता है कि बोर्ड्स या है और जो टर्म एग्ज़ाम्स है उसमें ज़्यादा फोकस करना है, टर्म एग्ज़ाम्स, एनुअल एग्ज़ाम्स। तो उसमें क्या करना चाहिए? वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन जो आता है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? ये जो दो गोल्स आपको दिए जा रहे हैं, ये दो अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो कि दो अलग एम्स को लेकर चल रहे हैं। वो उनके गोल्स हैं जिनमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, ठीक है? सो पहले तो इस चीज़ को समझिए। दूसरा, आप क्या चाहते हैं लाइफ से? क्या आप चाहते हैं कि जो आपने सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उसमें आप एक्सपर्टीज डेवलप करें, आप किसी हायर इंस्टीट्यूट को क्रैक करें तभी आपका जीवन सफल होगा? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आप जब फर्स्ट आएंगे तभी आपको जॉब मिलेगी, कि सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे तो जॉब मिलेगी? क्या इन डर के कारण आपको इतना कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है? एक्चुअली डिसीजन मेकिंग जब करनी होती है ना, बेस्ट आइडिया ये है कि आप प्रोज एंड कॉन्स निकालें। अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो इसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, मतलब फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। ऐसे ही डिफरेंट रिजल्ट्स या डिफरेंट डिसीजंस के लिए आप अलग एक लिस्ट बना सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और जहाँ पे आपको लगता है कि ये ठीक है, आप चूज कर सकते हैं। सी, इट इज़ योर लाइफ, you need to make it and you can break it too. So ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। यहाँ से एक मुझे याद आया, मैंने एक बुक पढ़ी थी, इकिगाई। इकिगाई में ये चीज़ ग्रेट, उसमें क्या मेंशन है याद है? I have not read that book actually. My mother reads that. Okay.
तो उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है देखना, उसमें उन्होंने बताया है कि आपको करियर कैसे चूज कर सकते हैं आप, ठीक है, आपका जिसको आप पसंद करते हैं, पैशनेट जिसके बारे में आप हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छे हैं, जो दुनिया को चाहिए आगे जाके, आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जो चलेगा, वो सब अगर मिलाया जाए तो आपको आपका एम मिल जाएगा, गोल मिल जाएगा। एक बार उसको देखेगा जाके एक वो एक अच्छा आपको सपोर्ट दे सकता है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, स्कूल की स्टडीज में या एग्जाम्स में? दिल क्या कहता है? पता है क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। नहीं, वो दोनों सोचने के बाद भी फिर कंफ्यूजन रहता है। जैसे अगर शॉर्ट टर्म का भी सोचे तो स्कूल में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इट्स नाइस, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का सोचे तो 12th में मार्क्स तो अच्छे चाहिए, जेई में भी अच्छा करना है, और अगर बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके भी एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, तो उसके भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कभी कभार। ये भी शॉर्ट टर्म ही है बच्चे। लॉन्ग टर्म पता है क्या है? मुझे लाइफ कैसी जीनी है। मैं जब 50 साल की हो जाऊंगी तो मेरे पास क्या क्या हो, कौन कौन हो, क्या चीज़ मुझे खुशी देगी, और उसके लिए मुझे क्या करना है। अब बैठ लो, 40 की जब हो जाऊंगी तो कैसा जॉब किस तरह का चाहिए? क्या मैं रिलैक्स जॉब चाहती हूँ, मुझे भाग दौड़ चाहिए? क्या मुझे फील्ड पे काम करना है या डेस्क पे काम करना है? 30 में आओ, ऐसे थोड़ा जैसे वो मेज आपने कि ना चूहे को खाने तक पहुंचाओ वाला जो आता है मैगजीन में, मेज वाला गेम आता है, तो क्या कहते हैं, चूहे को अपन लेके तो जाते हैं लेकिन फिर कहीं अटक जाते हैं, तो फिर उल्टा खाने को जो चूहे तक लेके कैसे आना है, मिल जाता है रास्ता दोनों साइड से, ऐसे ही करना है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी क्या है ना, सबके माइंड में ये है कि अरे अच्छा पैकेज चाहिए, उसी से जीवन में इज्जत मिलेगी। लड़कों को तो और बड़ा टेंशन में शादी तभी होगी जब अच्छा पैकेज मिले। नहीं, वैसे भी तुम्हारी शादी हो जाएगी क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो और ठीक ठाक कमा रहे हो, जीवन अच्छा जी रहे हो, दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमेशा अगर आप फेल भी कभी हुए तो कोई बात नहीं, और भी ऑप्शन है, ठीक है। तो वो है लॉन्ग टर्म। और ये जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये वाला एग्जाम दूँ, ये वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, बाहर जाऊँ, इंडिया में पढ़ूँ, वगैरह वगैरह, ये सब रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने। हाँ, तो फिर एक रास्ता नहीं काम है तो मान लो बाईपास से भी जा रहे, हाईवे से जा सकते हो कि नहीं? थैंक यू। Ashi, I know you want to ask something more. मैम, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर्स रहते हैं वो जैसे मेरा जो एग्जाम्पल है, मैं बीच में बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया था मेरा और मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो टीचर्स एडवाइस मी कि जो लेजर टाइम है और जितना स्लीपिंग आवर्स है उन दोनों को कम करके स्टडीज़ में डिवोट करना है। और जैसे ईटिंग टाइम है उसको भी कम कर दो, जितने स्लीपिंग टाइम है सब कम करके उसको स्टडीज़ में डिवोट करो। तो शुड आई डू दैट और शुड आई डू गेट सम अदर ऑप्शन और एनीथिंग? आपने ये डाउट पूछा, इसका मतलब यही है कि आपको इस एडवाइस पे भरोसा नहीं है। और अच्छी बात है कि आप इस किसी भी एडवाइस को यूं ही नहीं ले लेते, आप सोचते समझते फिर अप्लाई करते हैं। दैट्स रियली नाइस, दिस इज व्हाट यू ऑल शुड डू। बात आती है कि क्या किया जाए, क्या स्लीप टाइम, लेजर टाइम, मी टाइम कम किया जाए और पढ़ाई पर फोकस किया जाए। पता है क्या, ये आई थिंक आप करके देख भी चुके हो कई बार, और नहीं किया तो करके देख लो, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो ही जाएगी। अगर देखना है कि प्रोडक्टिविटी लूज कैसे करना है तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करके देखो, यू विल लूज इट। एक कहानी सुनोगे? हम सुना सकते हैं शॉर्ट में, कहानी सुना। मैं स्टोरी टेलर को मुझे कहीं ना कहीं से कुछ कहानी याद आ जाती है। लकड़हारे की कहानी सुनी? कौन सा है? चांदी और सोने। चांदी सोने का नहीं, आज वो वाले
आज 2 लकड़ा रहे हैं, एक राम और एक श्याम। राम है बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनती, बहुत वो रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर जंगल जाता है और वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटता है सुबह से लेकर शाम तक। वो 10 to 5 की जॉब से भी ज़्यादा कटे उसकी जॉब है, लकड़ियाँ काटता ही रहता है, काटता ही रहता है। फिर शाम को वापस आता है और लकड़ियाँ बेचने जाता है, थोड़े पैसे कमा लेता है। उसने एक दिन शाम को देखा, शाम भी लकड़ियाँ काटता है, सेम टाइम पर जाता है, सेम टाइम पर आता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा लकड़ियाँ होती हैं, उसके पैसे ज़्यादा बनते हैं, कमाई ज़्यादा हो जाती है। ऐसा कैसे होता है? उसने एक बार सोचा, चुपचाप से उसने पीछा किया और वो गया जंगल जाके देखा कि शाम जो है वो बीच में यार बैठ जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, गाने गा रहा, कहीं टेलीविजन में चला गया, चिड़िया विड़िया देखने लग गया। ऐसे क्या लकड़ी कहाँ कटेगी? अरे छोड़ो। लेकिन उसने देखा कि आखिरी में जब वो आया तो लकड़ियाँ डाला, ऐसा कैसे हुआ? उसने पूछ लिया आखिरकार कि भाई श्याम, तुम ऐसा क्या करते हो कि मजे भी करते हो और तुम्हारी लकड़ियां भी ज्यादा हैं और तुम्हें पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं? उसने कहा, मैं ब्रेक्स लेता हूँ, मैं बैठता हूँ, आराम करता हूँ और मेरे जो लकड़ी काटने वाला टूल है एक्स, उसको भी शार्प करता हूँ पत्थरों पे घिसकर। जब वो शार्प रहेगा तो एक हिट में ज्यादा करेगा। So, आपका स्टूडेंट्स का टूल क्या है? दिमाग। अगर दिमाग लगातार किसी पर्टिकुलर टास्क में लगा हुआ है, उसकी वन काइंड ऑफ फंक्शनिंग काम कर रही है और वो घिस रहा है, पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, वन पार्ट ऑफ ब्रेन इज ऑलवेज एंगेज्ड, इट इज नॉट गेटिंग रेस्ट, प्रोडक्टिविटी उसको शार्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको रेस्ट देना पड़ेगा और कुछ और करना होगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, टॉकिंग टू समवन, जैसे तुमको अच्छा लगे। मी टाइम बेसिकली, not social media because that is also using those same areas of the brain जहाँ पे आपको attention focus करना पड़ रहा है। Your prefrontal lobe is always active when you're studying or you're watching something. Okay? So उसको rest देना है तो actually could do something physical जहाँ पे इसका काम ज़्यादा ना हो। Body को भी rest दो, mind को भी rest दो, brain को भी rest दो। शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हो आप। जब वो लकड़ियाँ काटता था 2 मिनट बैठना था, बहुत लंबा नहीं बैठता। लेके देखो 2 मिनट का ब्रेक आपके लिए सफिशिएंट है क्या? 5 मिनट्स का सफिशिएंट है क्या? या आधे घंटे का ले लो, इट्स अप टू यू। थैंक यू। Thank you, ma'am. I would like to show my gratitude for motivating us and conveying your motivational words in solving our queries. This will also benefit our friends also. Thank you, ma'am, for giving your precious time. Thanks a lot. Thank you so much for inviting me here and asking such difficult questions but nice questions. Thank you. I've learned a lot from you guys as well. Thank you so much, ma'am, for coordinating this. Thanks. That was quite a fruitful session. Ma'am Deepika Sharma, we look forward for more of your visits so that our students get benefited by it. Thank you so much.